ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آبدوز میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین دکھائی دے رہا تھا۔ اب ہم سطح سمندر سے نیچے تھے۔ اس بات کا احساس ہمیں انجنوں کی آواز کی تبدیلی سے ہوا۔ اندھیرے میں ہی سر نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم کیبن سے باہر آ گئے۔ اس طرف جناب۔ باہر کھڑے ایک مستعد جوان نے آپریشن روم کی طرف اشارہ کیا۔ میرے انسٹرکٹر اور میں ایک ساتھ آپریشن روم میں داخل ہوئے تھے، جس کے دروازے کے باہر جلتے سرخ بلب کے سائے تلے کھڑے گارڈ نے ہمیں تعظیم دی۔ آبدوز کے کپتان ایک سکرین کے سامنے کھڑے حالات پر نظر رکھے مختلف احکامات جاری کر رہے تھے۔ ان کے گردا گرد مختلف مشینوں کے گرد نیوی کے مستعد اور چاق و چوبند جوان کسی بھی حکم پر عمل پیرا ہونے کو تیار تھے۔ واٹس رانگ آفیسر؟ میرے سر نے کیپٹن کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ کوئی خاص خطرہ نہیں، کچھ الائز آ رہے ہیں اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارنے کے لیے، کیپٹن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چند منٹ کے بعد ہم آپریشن روم سے باہر آ گئے اور اسی کیبن میں پہنچ کر سر نے مجھے لیٹ جانے کو کہا۔ میں ان کے بضد ہونے پر بادل نخواستہ وہاں لیٹ تو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے انسٹرکٹر باہر نکل گئے تھے۔ وہ شاید مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں امانت کے بارے میں سبکدوش ہو کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلی 2 راتوں کی تھکن بھی آنکھوں میں تھی، لیکن آنکھ تھی کہ کمبخت لگتی نہ تھی۔ قریباً 15-20 منٹ کے بعد ہی میں بور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدوز اب سطح سمندر پر سفر کر رہی تھی۔ میں نے طبیعت پر چھائی کسل مندی دور کرنے کے لیے آبدوز کے عرشے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جوان نے سیڑھیوں تک میری رہنمائی کی اور میں سیڑھیوں پر پاؤں دھرتا ایک بڑے سوراخ سے گزر کر اوپر آ گیا۔ عرشے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے میرے انسٹرکٹر اور آبدوز کے کپتان قریب قریب کھڑے تھے۔ آبدوز کی تمام لائٹس آف تھیں، لیکن چاند کی دم توڑتی روشنیاں بھی اس کی نشاندہی کو کافی تھیں۔ مجھے اوپر آتے دیکھ کر میرے سر لپک کر میری طرف آئے۔ کیا بات ہے؟ اکیلے میں دل نہیں لگ رہا سر، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، ابھی کچھ روز یوں ہی ہوگا، بڑے گلیمر سے نکل کر آئے ہو نا۔ میرے انسٹرکٹر صاحب نے بھی میری طرف قہقہا اچھالا۔ کیپٹن صاحب بھی اب ہماری گفتگو سننے میرے نزدیک آ گئے تھے۔ چاندنی رات میں ان کا پرعزم اور تمتماتا ہوا چہرہ اس امر کا غماز تھا کہ یہ کوہ شکن ارادوں کا مالک پانیوں کا باسی طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ان کی تراشیدہ چھوٹی چھوٹی داڑھی اور بل کھاتی مونچھیں ان کے سرخ و سفید چہروں کا وقار دوچند کر رہی تھی۔ ٹوپی کے کناروں سے ان کی کنپٹیوں پر اکا دکا سفید بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کی عمر کا ایک حصہ سمندر سے لڑتے بھڑتے گزرا ہے۔ ان کی گہری بادامی آنکھیں پتھروں کے پار جھانک لینے کی مقناطیسی قوت کی مالک تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کافی پینا پسند کریں گے، ان کی باروب آواز نے ہنستے ہوئے حکم سنایا۔ اصولاً تو اس وقت انہیں اپنے آرام دہ کیبن میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جگہ لینے کو ان کے نائب بھی بہرحال موجود تھے، لیکن جس خطرناک ذمہ داری کا بوجھ انہوں نے اٹھایا تھا اس سے مکمل عہدہ برا ہونے سے پہلے انہوں نے شاید خود پر آرام حرام کر رکھا تھا۔ ایسے خطرناک مشن کا حوصلہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ دشمن کے نرغے میں گھس کر اپنے ایجنٹ وصول کرنا اور انہیں واپس اپنے ساحلوں تک لے آنا کہنے سننے کی حد تک تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس راستے میں آنے والے محیب خطرات کا سامنا کرنا جیداروں کا کام ہے۔ عرشے پر لگے انٹرکام پر انہوں نے ہمارے لیے کافی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی وہ ہماری طرف پلٹے ہی تھے جب ایک پیٹی افسر سیڑھیوں سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے ایڑیاں بجا کر اپنے کمانڈر کو تعظیم دی۔ یس، کیپٹن نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ سر، ریڈار نے کچھ موومنٹ نوٹ کی ہے۔ پیٹی افسر کی اطلاع نے مجھے چونکا دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، کیپٹن صاحب بولے۔ پیٹی افسر واپس لوٹ گئے۔ کیپٹن نے ان کے بعد خود ہی نیچے جانا چاہا۔ اچانک ان کی پشت پر انسٹرکٹر صاحب کی آواز بلند ہوئی۔ لک کیپٹن۔ کیپٹن تیزی سے دوسری طرف پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گلے میں لٹکی دوربین اب ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ پھر وہ دوربین آنکھوں سے لگا کر انہوں نے انسٹرکٹر صاحب کی اشارہ کرتی انگلی کی طرف نظریں جما دی، اور ابھی انہوں نے دوربین آنکھوں سے لگا ہی رکھی تھی کہ اچانک فضا زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔
अपने अकब में चिंगारियों की एक लंबी लकीर छोड़ता गोला आबदोस से करीबन 30-40 गज दूर समंदर के पानी में गड़ाम की आवाज पैदा करता गिरा था। कम ऑन जेंटलमैन, कैप्टन साहब ने फुर्ती से एक तरफ हटते हुए कहा। कम ऑन बॉय, इंस्ट्रक्टर साहब ने मुझे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मेरे बाद मेरे सर और फिर कैप्टन साहब नीचे आ गए। हमारे अकब में गोलों के फटने की जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थीं। डाउन। नीचे पहुंचते ही कैप्टन ने पहला हुक्म जारी किया। उनके हुक्म की गूंज फौरन ऑपरेशन रूम में पहुंची और मुख्तलिफ बड़े बड़े व्हीलों के गिर्द खड़े जवानों ने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। जब कैप्टन साहब के पीछे पीछे हम दोनों ऑपरेशन रूम में पहुंचे तो आबदोस ने बाकायदा डगमगाना शुरू कर दिया था। वो लोग अब गहरे पानियों में उतरकर इस तबाहकुन जहाज से दूर हट रहे थे जिससे हम पर बमबारी की जा रही थी। शायद एलाइज जहाज ने आबदोस की नक्लो हरकत नोट कर ली थी और दुश्मन ने पहले खामोशी से आबदोस को घेरे में लेने का फैसला किया होगा ताकि वो आसानी से इसका शिकार खेल सकें। उसूलन तो हमें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन न तो किसी ने हमें वहां से जाने को कहा, न ही हमारे लिए ये मुमकिन था कि हम अपने शेर दिल मल्लाहों को करीब से दुश्मन से दो हाथ करते हुए देखने से महरूम रहें। कैप्टन की आंखें पेरिस्कोप पर लगी हुई थीं। उनसे थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ जवान किसी भी हुक्म की तामील में सरबकफ तैयार थे। जैसे जैसे अहकामात जारी हो रहे थे, मुख्तलिफ पोजीशनों पर मुस्तैद जवान मुख्तलिफ लीवरों पर और व्हीलों को हरकत में ला रहे थे। आबदोस की बरकी आंखें और कान मुसलसल बेदार थे। समंदरी लड़ाई में सबसे ज्यादा जिस सलाहियत की जरूरत होती है वो है सब्र, इंतजार, मुनासिब मौके का इंतजार, और अब सब्र इंतजार की कैफियत भी नुक्ता-ए उरूज को छूने लगी थी। फिर हमने कैप्टन साहब को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म देते देखा। उस लम्हे शायद मेरी तरह मेरे इंस्ट्रक्टर साहब भी अफसोस कर रहे हों कि हम इन जांबाजों के साथ अमली जिहाद में क्यों शरीक न हो सके। अब पेरिस्कोप पर उभरने और डूबने वाली लकीरें एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार करने लगी थीं। कैप्टन ने अपने हाथ में पकड़े माइक में कुछ कहा और अब चीफ ऑर्डिनेंस आरटीबी फिशर के सामने लगा सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मुझे इल्म था कि अब वो बेकरारी से अपने टारपीडो अफसर के हुक्म का मुंतजिर होगा। उसने तमाम टारपीडो हमले के लिए तैयार कर लिए थे। एबल सीमैन अगली टारपीडो ट्यूबों के बिल्कुल नजदीक उस कमानी पर मजबूती से हाथ जमाए खड़ा था जो टारपीडो फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे जैसे बदबख्त जहाज आबदोस की रेंज में आ रहा था, कैप्टन के चेहरे का जलाल बढ़ता जा रहा था। उस लम्हे वो जंगल का ऐसा बिफरा हुआ शेर दिखाई पड़ते थे जिसे गिदड़ों के रेवड़ ने अपनी कछार से बाहर आने पर मजबूर कर दिया हो। बिलाखिर मेरे कानों में कैप्टन की वो गजबनाक आवाज गूंजी जिसका मुझे शिद्दत और बेकरारी से इंतजार था। अल्लाहु अकबर। तमाम जवानों ने मिलकर नाराए तकबीर बुलंद किया जिसमें नुमाया तरीन आवाज मेरी और मेरे इंस्ट्रक्टर की थी। पहला टारपीडो फायर हो चुका था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इंतजार की शिद्दत से सबके आज़ाब तड़कने लगे थे और अभी तक धमाका रिकॉर्ड करने वाले पेटी अफसर की तरफ से कोई इशारा मौसूल नहीं हुआ था। सब लोग बेचैनी से गर्दनें मोड़े उसी की तरफ देख रहे थे। फौरन एबल सीमन के हाथों में बरकी रौ दौड़ी और अगला टारपीडो फायर हो गया। इस मर्तबा आबदोस को जबरदस्त झटका लगा था। उसके साथ ही जवानों के फलक शिगाफ नारों से आबदोस दहल गई। धमाका रिकॉर्ड करने वाले पेटी अफसर ने अपनी सीट से उछलकर नाराए तकबीर बुलंद किया। भारतीय फ्रिगेट गर्क हो चुका था और महासरा टूट गया। आबदोस चिंगाड़ती हुई दुश्मन का जोम रौंद कर आगे बढ़ गई। पेरिस्कोप ने भी गर्क होते हुए जहाज की गवाही दे दी थी। आबदोस का रेडियो सेट जागा और अपनी फतह मंदाना मराजियत की खबर देकर खामोश हो गया। उसके साथ ही हमारे हाथों में कॉफी के मग आ गए। मुझे अपना वादा याद था बहादुर साथियों, कैप्टन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कॉफी के मग फतह के जाम बन गए थे। फिर वो सुरूर सारी जिंदगी न मिल सका जो उस रोज आबदोस में कॉफी पीते हुए मिला था। सुबह जब सूरज की अव्वलीन किरणों ने समंदर के नीले पानियों से बगलगीर होकर स्याहियां छट जाने का प्याम दिया तो हमारी फातेह आबदोस महफूज पानियों को चूम रही थी। सतह समंदर पर आबदोस नमूदार होते ही हम तीनों अर्शे पर आ गए जहां नीले पानियों पर सुर्ख किरणों का मस्ताना रक्स जारी था। इस मंजर ने हम सब पर जैसे जादू सा कर दिया। एक मधोशी थी कि अंग अंग में रक्स गुना हो गई। ये हमारे पानी थे, हमारी हवाएं थीं, हमारा समंदर था। 3 गश्ती गन बोट्स ने आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल किया।
उन्होंने बहरिया के मखसूस अंदाज में आबदोस के गिरदा गिर्द चक्कर काट कर फजा में चिंगारियां बखेरी और अपने फातिह जियालों का शायान शान खैर मकदम किया। गहरे पानियों की हद पर आकर आबदोस ठहर गई और एक गन बोट हमारी समत बढ़ आई। एक मर्तबा फिर पानियों पर तख्ते बिछ गए। समंदर के पास बानों के फराख सीनों से तवानाइयां हासिल करके जब हम दोनों गन बोट पर पहुंचे तो मेरी कंपनी के जवान आंखों में मोहब्बत के जोत जगाए मेरे मुंतजर थे। साहिल समंदर से हम लोग एक जीप में अपने नए कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। जीप पर मेरे साथ ड्राइवर था और पिछली सीट पर दो जवान हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें लिए बैठे थे। हम कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। अचानक ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाकर जीप रोक दी। उसके साथ ही जोरदार धमाके से फजा गूंज उठी। इतना जोरदार और अचानक झटका था कि मेरा सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। पिछली सीट पर बैठे दोनों जवान उछलकर हम पर आ रहे। दूसरे ही लम्हे हम संभल चुके थे। चारों ने अपने असलहे समेत मुख्तलिफ अतराफ में छलांगे लगाईं। खैरियत गुजरी, हम में से कोई जख्मी नहीं हुआ था। शायद ड्राइवर की छठी हिस्स ने हमें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था कि जीप से बमुश्किल 20 गज दूर धुएं और धूल का बादल आसमान की समत उठ रहा था। किसी लॉन्चर से फायर किया हुआ रॉकेट गिरकर फटा था। शायद फेंकने वाले से अंदाजे की गलती हो गई थी या ड्राइवर को किसी रहमत के फरिश्ते ने आफियत की राह समझा दी थी। कुछ भी हो, बहरहाल ये हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। पहले तो हम तरबियत के मुताबिक खतरे वाली जगह से हद्दुल इम्कान दूर हट गए। फिर मैंने चाहा कि उठकर सूरत हाल का जायजा लूं, लेकिन इस दफा मैं अपनी मर्जी से नीचे नहीं बैठा था। किसी अनदेखी ताकत ने मुझे मुंह के बल जमीन बोस कर दिया। मेरी नजरों के सामने मुझसे 10-15 गज के फासले पर खड़ी जीप के परखचे उड़ गए थे। इस मर्तबा निशाना लेने वाला हरगिज नहीं चूका था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे कोहनियों के बल पीछे हटना शुरू कर दिया। बाकी साथियों की तो कुछ खबर नहीं थी। यकीनन वो भी मेरी तरह महफूज पनाहगाह की तलाश में होंगे। खेतों का सिलसिला अब खासा घना हो रहा था। अगरचे बज़ाहिर तो ये जाए अमान दिखाई पड़ती थी, लेकिन खुशफहमी में मुब्तला रहने की अगर हमें कोई आदत थी तो वो दौरान तरबियत ही खत्म हो चुकी थी। मुझे इल्म था कि ये सिलसिला रॉकेट फटने तक महदूद नहीं, ना ही हमला आवरों ने हवा में तीर चलाया था। वो मुनज़्ज़म थे और यकीनन बाखबर भी। यहाँ से महज 2-2.5 मील के फासले पर हमारा फील्ड हेडक्वार्टर था और किसी हेडक्वार्टर के इतने नजदीक आकर अचानक हमला आवर होना बच्चों का खेल नहीं। उन लोगों ने नताइज पर नजर जरूर रखी होगी। उन्हें इल्म था कि इतला मिलते ही हमारे दस्ते कितनी बर्क रफ्तारी से हरकत में आते हैं। फिर वही हुआ। नजर उठाकर देखने का तो यारा नहीं था, लेकिन क्रॉलिंग करते हुए मैं फायरिंग से होने वाले धमाकों की आवाज से इस्तेमाल होने वाले असलहे का बखूबी अंदाजा लगा सकता था। हम पर वाकयातन आतिशी ओले बरस रहे थे। इंसान कितना बेबस है कि सब कुछ चाहते हुए कुछ भी नहीं कर पाता। इस बात का सही इदराक ऐसे ही मरहलों पर होता है। मेरे कंधे से स्टेन गन लटक रही थी। अचानक हादसे ने दिमाग को ही नहीं गरमाया था, खून भी खौलने लगा था। लेकिन मेरी तरफ से होने वाली कोई भी हरकत सिवाय मौत को करीब तर लाने के और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकती थी। स्टेन गन की गोलियां हमला आवरों का तो क्या बिगाड़ती, उल्टा मेरी निशानदही कर देती और अगले ही लम्हे कोई रॉकेट इस जगह फट कर मुझे जिंदगी के बोझ से हमेशा के लिए सुबकदोश कर देता। यकीनन किसी सात सईद में मेरी माँ की दुआएं मुस्तजाब हुई होंगी। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे बच्चा। वो दिन में कितनी ही मर्तबा ये फिक्रा दोहराती थी। कितनी अजीम होती हैं ये माएं। उनकी मोहब्बत की जड़ें जमीन के अंदर ही अंदर कितनी गहरी होती हैं। बज़ाहिर जब मौत के तमाम असबाब मुहैया हों और आप किसी मौतज़े के मरहून मिन्नत होकर बच निकलें तो इस अमल के पीछे सिर्फ एक ही कुव्वत कार फरमा होती है, दुआएं, दुआएं और सिर्फ दुआएं। मेरे इन जज्बों को तक़वियत देने के लिए ये दलील काफी थी कि कोई मेरी सलामती के लिए दुआ गो है और इन्हीं दुआओं के सदक़े शायद खेतों का वो सिलसिला वसी से वसी तर होता चला जा रहा था। दूर नजदीक साथियों का कुछ पता न चलता था। मैंने 1-2 मर्तबा उन्हें देखने के लिए गर्दन चारों तरफ घुमाई, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे सिवाय फटते हुए गोलों और सनसनाती गोलियों के और कुछ दिखाई न दिया। मैं करीबन रेंगता हुआ एक समत बढ़ रहा था। ये समत महफूज थी या गैर महफूज इसका अंदाजा तो मुझे नहीं था, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि सड़क से ज्यादा दूर हट जाऊं। अचानक मुझे अपने दाहिनी जानिब खेतों में सरसराहट सी महसूस हुई। जमीन से चिपके चिपके मैंने स्टेन गन का रुख उस तरफ फेर दिया।
खुद मैं करीबन आड़ा तिरछा हो रहा था। अगर उस तरफ रुख बदल कर बाकायदा पोजीशन लेता तो इस बात का खतरा था कि आने वाला आहट लेकर खबरदार ना हो जाए। मैं कुछ ऐसे जाविये से जमीन पर लेटा था कि रुख बदलते बदलते गोलियों की भेंट चढ़ जाता। आने वाले को शायद इस बात का यकीन था कि जहां सामना दोस्त ही से होगा, इसीलिए वो बेधड़क तमाम खतरात बालाए ताक रखे नुमाया हो गया था। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से बेइख्तियार सुख की लंबी सांस खारिज हुई। ये हमारा साथी था। इस नौजवान लेफ्टिनेंट से मेरा तारुफ बमुश्किल आधा घंटा पुराना था। उसकी फराख पेशानी और सीने के नुमाया बाल इस बात की चुगली खा रहे थे कि इसकी रगों में खालिस खून दौड़ रहा है। ये नौजवान मेरे मेजबानों का ट्रूप कमांडर था जो मुझे लेने आए थे। एक दूसरे को देखते ही बेइख्तियार हमारे होंठों से मुस्कुराहट चिपक गई। मौत के जबड़े में फंसकर मुस्कुराने की एक अपनी लज्जत है। इसका एहसास वही जीदार कर सकते हैं जो मौत की गोद में बैठकर उस पर कहकहे लगाने के फन से आशना है। मैं रेंगता हुआ उसके करीब पहुंच गया। हम दोनों ने वहीं लेटे लेटे अपने असबाब का जायजा लिया। एक G3 ऑटोमेटिक राइफल, स्टेन गन, 2 चाकू, चंद फालतू राउंड और 5 हैंड ग्रेनेड जो मौजूदा सूरत हाल के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। हालात की संगीनी का एहसास करते हुए हमने वहां से चुपचाप निकल जाने को ही गनीमत जाना और फौजी तंजीम के मुताबिक एक दूसरे के ताक़ुब में रेंगने लगे। नौजवान लेफ्टिनेंट इस इलाके से कुछ आशनाई रखता था, इसलिए वो आगे आगे था और मैं उससे बमुश्किल 2-3 गज के फासले पर उसके ताक़ुब में। हमें दूर से देखने पर यकीनन यही एहसास हो सकता था जैसे 2 अजदहे एक दूसरे के ताक़ुब में लपक रहे हों। करीबन 20 गज का फासला तय करने पर हम दोनों ही ठिठक कर रुक गए। हमारे सामने 2 लाशें पड़ी थीं, हमारे 2 साथियों की लाशें, जिनके आज़ा इर्द गिर्द बिखरे पड़े थे। एक रॉकेट उनके नजदीक फटा था जिसने पलक झपकते 2 जीती जागती जिंदगियों को मिट्टी के खिलौनों की तरह बखेर दिया था। उनकी पहचान के लिए खुशकिस्मती से उनके चेहरे महफूज रह गए थे। दोनों शहीदों के निचले धड़ करीबन अलग हो चुके थे। ये मंजर हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मौत से आंख मचोली हमारा पेशा था। हमारी आंखों के सामने हंसते खेलते माओ के लाल चुप साध लेते थे। हमने मुक्ति वाहिनी की बर्बरियत का शिकार होने वालों की मस्ख शुदा लाशें सैकड़ों की तादाद में देखी थीं, लेकिन वो कुछ ऐसा अजीब नजारा था कि इससे पहले कभी न देखा। ये दोनों नौजवान लेफ्टिनेंट की कंपनी के जवान थे जिन्होंने हमारे साथ जीप से छलांग लगाई थी। लेफ्टिनेंट ने इस वाक़े का कुछ ज्यादा ही असर कबूल किया था। वो दोनों लाशों के करीब पहुंचकर घुटनों के बल झुका और उसकी नजरें अपने शहीद साथियों पर गड़ गईं। वो सब मौत की शाहराह के मुसाफिर थे। उन्होंने एक दूसरे की रफाकत में मौत और जिंदगी के कई मार्के सर किए थे। उनका अचानक इस तरह बिछड़ जाना लेफ्टिनेंट पर बहुत शाक गुजरा। ऐसे लम्हे अच्छे भले फौजियों को जज्बाती कर देते हैं। तब वो पत्थर के बेहिस बंदों से आम इंसान के रूप में लौट आते हैं। अपने प्यारों की मौत पर उनका कलेजा भी फट जाता है। ये अलग बात कि उनकी चीखें अंदर ही अंदर दम तोड़ जाती। बहरहाल वो एक ज़ाब्ते के पाबंद हैं जिसके तकाजे उन्हें एक तंजीम में बांधे रखते हैं। इतने मुनज़्ज़म होते हैं कि वो मरते भी ढंग से ही हैं, वक़ार से और आन बान से। मुझे थोड़े अरसे की जां गुसल रियाजतों ने खासा ज्ञान बहम पहुंचा दिया था। ऐसे सानेहात पर सब्र करना, जब्त करना मुझे आ गया था। अपने साथी के अंदरूनी कर्ब का अंदाजा मैं बखूबी कर सकता था। मैंने उसी पोजीशन में आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया ताकि उसे तशव्वी दे सकूं। नौजवान लेफ्टिनेंट ने मेरी जानिब चेहरा घुमाया। उस लम्हे उसकी आंखों में बिजली सी चमक रही थी। अपने प्यारों की शहादत ने उसकी आंखों में खून भर दिया। उसके चेहरे के आसाब तन गए थे। उस लम्हे उसके सपाट चेहरे पर सिवाय 2 दहकती आंखों के और कुछ दिखाई न दिया। शिद्दत ज़ब्त से उसकी कनपटियों की रगें उभर आई थीं। वो शोलाए जवाला बन चुका था। उसके अंग अंग में अलाव दहक रहे थे। यकीनन वो अपने साथियों के कातिलों को भस्म कर देना चाहता था। उस लम्हे मैं उससे आंखें चार करने की हिम्मत न पाता था। फिर मेरे हाथ के दबाव ने उसे झुक जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरी हिस्सियात बहरहाल बेदार थीं और मैंने अपनी समत उठते उन कदमों की आहट महसूस कर ली थी जो फायरिंग का कवर लिए हमारी तलाश में उस समत आ रहे थे। उनके बेशुमार कदमों की आहटें हमें उनके सही तादाद का एहसास दिलाने के लिए काफी थीं। बहादुरी अपनी जगह
मसलहत भी बहरहाल एक हिकमत अमली है। वक्त का तकाजा यही था कि हम अपनी जगह कम से कम उस वक्त तक दुब के रहें जब तक हमें मदद न पहुंच जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। मेरा हमकार और ही ख्यालों में गुम था। कुदरत ने उसे हाथों हाथ अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए मौका मुहैया किया था। वो इस सादत से क्यों कर महरूम रहता। उसने नरमी से मेरा हाथ पकड़कर अलग कर दिया, मेरी तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में अपने तर्ज अमल पर माजरत चाही। उस लम्हे उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून हो रहा था। उसकी सारी दुरुस्तगी, सख्ती, खिंचाव खत्म हो चुका था। वो 5वीं जमात का कोई मासूम और खिलंडरा तालिब इल्म दिखाई दे रहा था। आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी। उस लम्हे उसके चेहरे से वो शान मुतरश्शे थी जिस शान से कोई मक्तल को जाता है, और हक ये है कि सलामती उसी शान की रहती है। वाकई जान तो आनी जानी शय है। उसके अज़ाइम थे कि अल्लाह अल्लाह। मैं भी तमाम मसलहतें भुलाकर उसकी राह पर गामजन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।